हेलो गाइस। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेने वाले हैं, जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ all kind of mathematical problems that you may expect in your recombinant DNA technology exam. ओके, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सूचना मैं देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई भी पीजी स्टूडेंट्स मौजूद है, सो सॉरी दैट दिस सेशन आई हैव मेड स्पेशली फॉर यूजी स्टूडेंट्स. Okay, where you get every kind of patterns or problems that you may expect in your undergraduate recombinant DNA technology exam. But if you try to, but if you are a PG students, then फिर से दिल से सॉरी दैट मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो मैं पैटर्न मैं यहाँ पे बताने जाने वाला हूँ उस सब को लेकर आपका ऑल जो नीड्स है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पेपर में आ सकता है फ्रॉम पीजी बैकग्राउंड वो फुलफिल होगा. बट यूजी स्टूडेंट आई कैन गारंटी बिकॉज आई हैव brought here all the various type of important patterns that I have seen in the previous year questions. चलिए शुरू करते हैं. हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा जो सिलेबस है उसमें टोटल 6 यूनिट्स है. फर्स्ट वन इज़ द हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. वहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं है. ओके, बहुत बढ़िया. सेकेंड वन इज़ द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. यहाँ से दो तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं. वन इज़ द नंबर एंड साइज ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट. इस पैटर्न के अंडर में आप लोग दो तरह के प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. वन इज़ जहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि GC content is 50% and another type of problem where GC content will be anything but not 50%. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ 50% ऑफ GC content. We all know that DNA is made up of 80 GC. The meaning of GC content sorry. The meaning of GC content is 50% simply means the 80% of 80 will be also 50%. Okay, that also means that the amount of A will be exactly amount of T, will be exactly amount of G, will be exactly amount of C, especially when it is mentioned that 50% GC content is present. Now क्या बेसिस है इस टॉपिक का? नंबर एंड साइज ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट. इस टॉपिक आपको बोलना चाहता है कि आप इस टोटल जो मैंने ये बनाया है ये है एक एंटायर जीनोम. दिस इज एन एंटायर जीनोम. ओके, सपोज आप एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करना चाहते हैं. बिफोर making the digestion you are willing to find out how many restriction site may present in the entire genome. Okay, वो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको इस टाइप के मैथ आना चाहिए. ओके, in case of 50% G plus C, I want to told you not only in case of 50% G plus C but all the two type of patterns that we will going to discuss. That first thing that you need to know that restriction endonuclease are of mainly three types. One is known as 4 base pair cutter, second one is known as 6 base pair cutter, third one is known as 8 base pair cutter. Clear? इसमें से पहला दो जो है 4 बेस पेयर कटर 6 बेस पेयर कटर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 8 बेस पेयर कटर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन? वो सिर्फ आपको मांगना चाहता है कि कितना रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकता है इन द एंटायर जीनोम. दैट इज़ द नीड ऑफ देम. ओके, और दैट इज़ द नीड ऑफ द क्वेश्चन. इस सेम चीज़ को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है. ओके, दैट मीन्स इफ़ आई
told you that this is an entire genome, okay, and I have not mentioned what is the entire length of the DNA, and now I have told you that I want to cut entire genome with a 4 base pair cutter, and you have to find out that what will be the length of the each fragment. Okay, so it is possible to determine, and also the condition should be mentioned that the 50% of the G plus C content is present. Okay, that is one type of pattern that you can get, or it is the sub pattern under the 50% G plus C. Okay, that is they will talk about the length of the restriction fragment. That is number one. And the second one is they will also told you that कितने बेस पेयर के बाद restriction side होने की संभावनाएं है. Okay, so what is the probability that a restriction site will be present after what base pair? Okay, so इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि 50% G plus C कंडीशन जब मेंशन रहेगा, सो आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है 4 to the power n. ओके, सो व्हाट इज़ द n? सो मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर ऑफ 3 टाइप्स, 4 बेस पेयर कटर, 6 बेस पेयर कटर, 8 base pair cutter. What is the meaning of the 4 base pair cutter? That means the meaning of the 4 base pair cutter is that the restriction in the nucleus will recognizes a recognition site of 4 nucleotide or 4 base pairs. Okay, similarly 6 base pair cutter means the restriction in the nucleus will recognize a recognition site of 6 base pair. Similarly in case of 8. Okay, so that means what? As I have told you that 50% G plus C के केस में A, T, G, C का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट रहेगा जब ये बोला जाएगा कि 50% G plus C कंडीशन फुलफिल हो रहा है in the entire genome, right? Under such circumstances you can apply that formula, where n simply means the number of base pair cutter you have used. Okay, that means for 4 base pair cutter the n will be 4 to the power 4, for 6 base pair cutter the 4 will be 4 to the power 6, for 8 base pair cutter the 4 will be, the number will be 4 to the power 8. Okay, so that will find out for you the repetition of the target sequence. That means target sequence कितने base pair के बाद repeat करने की possibility है. For example, in case of 4 base pair cutter, 4 to the power 4 is the possibility. That means after every 256 base pair, after you will get your recognition sequence. That simply means, suppose if it is your gene of interest and this is the restriction side, that simply means दोनों restriction endonucleus के बीच का जो distance होगा वो होगा 256 base pair. So इससे कि मैं क्या इसके बेसिस में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि restriction fragment जो generate होगा उसका length होगा 256 base pair, because after this restriction endonucleus the next restriction endonucleus that will present will be again after 256 base pair, right? So that is what I want to tell you. Similarly in case of 6 base pair cutter the probability will be 4 to the power 6, and in case of 8 base pair cutter the probability will be 4 to the power 8. Okay, but in reality इतना आसान चीज़ नहीं होता क्योंकि G plus C कॉन्सेंट्रेशन द G plus C कंटेंट जो है वो कभी भी इतना लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करके नहीं चलता. G plus C आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में केस में ये मिलेगा कि 50% होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस ये 50% नहीं होगा. ओके, एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया make sure that A and T content will be higher than the G and C content. That is why the real life figure will be always varies from calculative figure. So what
we have to do when G plus C content is not 50%, we will also going to discuss. But before that, let consider a normal example. So यहाँ पे बोला है कि ये जीनोम है, ओके, इस जीनोम में को हम कट करना चाहते हैं हिंट्री रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. सो हियर द रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज AAGCTT. So they are wanting from us that what will be the average size of the fragment produced. So बहुत आसान है कि हमको बस 4 to the power 6 करना है. इसका मतलब every 4 to the power 6 base pair after there can be a recognition site. That simply in turn means the average size of the fragment produced will be 4 to the power 6 base pair. Why? Because ये अगर एंटायर जीनोम का लिनियराइज रिप्रेजेंटेशन है, सो आफ्टर वन रिकॉग्निशन साइट द प्रोबेबिलिटी दैट a next recognition site will be present will be after 4 to the power 6 base pair. So that is how we can find out the average size of the fragment produced. So now this problem is for when the GC content is not 50%. So क्या करना होगा in case of when it is mentioned that GC content is not 50%. So under such circumstances we have to use a very famous formula of DNA known as Chargaff's rule. So scientist Chargaff हम लोगों को क्या बताते हैं कि number of purine will exactly equal to number of pyrimidine. That is what Chargaff's rule is. And I think I can expect that purine and pyrimidine is a common term for you guys, right? So sorry, it will be A and G. So purine is are adenine and guanine, right? And pyrimidine are cytosine, thymine and uracil in case of RNA. Okay, so Chargaff ने बताया कि number of purine present in an entire DNA will be exactly equal to number of pyrimidine. Clear? Again, और एक जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो सिंपली कह रहा है कि A will be exactly equal to T and G will be exactly equal to C. That means A और T का जो नंबर होगा वो exactly same होगा and G and C का भी नंबर same होगा. Okay. So now after learning the Chargaff's rule, let's talk about the question. So वो लोग ने बताया कि G and C का जो कंटेंट है वो 40% है एंड Chargaff हमको बता रहे हैं कि G and C the number of G and C will be equal. तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि percentage of G will be 20, percentage of C will be 20. Okay, similarly if the GC content is 40%, so it is obvious that the AT content will be 60%, isn't it? So, and as Chargaff rules also mentioned that number of adenine will be exactly equal to number of thymine, so yes, I can expect that the number of adenine will be 30% and the number of adenine will be, that is number of thymine will be 30%. Okay, so we have derived the number of adenine, the number of thymine, the number of guanine, the number of cytosine. So now सिर्फ सिंपल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना होगा. दैट मीन्स इन द एंटायर DNA द ए की होने की प्रोबेबिलिटी है 30%. सो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि GC कंटेंट ऑफ द जीनोमिक DNA जब आपको बोला गया है कि 50% नहीं है, तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस आपको जानना ज़रूरी है कि आप जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करने वाले हैं उसका सीक्वेंस और उसका रिकॉग्निशन साइट क्या होगा. ओके, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज़ द प्रोबेबिलिटी रूल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो द फर्स्ट टर्म इज़ ए. सो ए होने की प्रोबेबिलिटी पूरा इंटायर जीनोम में 30% है. सो वी कैन राइट 30/100. Similarly, we can write the rest of the things. Okay,
So by multiplying we will get this value, and this value simply wants to tell us that after 3086 base pair you will get a recognition site. Okay, so average size of the recognition fragment will be 3086. Okay, and every restriction site will be occur after 3086 base pair. Okay, so that is the first type of problem that you may face. So let's talk about the second type of problem. So I have taken this problem from Pathfinder CSIR net लाइफ साइंस बुक वॉल्यूम 2. ओके, सो क्या ये बताना चाहते हैं ये समझिए. सो वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास दो फ्रैगमेंट है, एक का लेंथ है 400 KB, अनदर का लेंथ है 1900 KB. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर ए हमको इस दोनों फ्रैगमेंट को जोड़ना पड़ेगा. ओके, जो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है. सो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 900 KB का जो डीएनए सैंपल है उसको एक एपेन ड्रॉप में लेके 400 KB का जो डीएनए सैंपल है उसको भी लेंगे उस एपेन ड्रॉप पे एंड ऐड कर देंगे T4 डीएनए लाइगेस. ओके, सो और एक बात इन लोगों ने बताया है कि ये जो दोनों फ्रैगमेंट हम लोगों को मिला था वो मिला था BAMH 1 से डाइजेस्ट करने के बाद. दैट मीन्स द स्टिकी इंड्स दैट इज जनरेटेड हेयर आर ऑल आर BAMH 1 इंड्स. कैन वी से दिस? राइट. सो नाउ वो लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर हमने उस दोनों डीएनए को ऐड किया, उसके बाद लाइगेस को ऐड किया, उसके बाद हमने एगारोस जेल में उसको चला दिया. ओके, आफ्टर 30 मिनट्स के बाद हमने एक बार एगारोस जेल को चलाया. सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट. वो लोग बोलना चाहते हैं कि एपेन ड्रॉप में हमने दो डीएनए सैंपल एंड लाइगेस को ऐड कर दिया. ओके, एंड उसके बाद हमने इंक्यूबेट किया. आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट हमने एक बार जेल को रन किया with the help of the sample that we have, that is nothing but the sample which is present in this epen drop. Okay, उसके बाद हमने 9 आवर्स तक इसको इंक्यूबेट होने दिया. ओके, आफ्टर 9 आवर्स वी आर अगेन रनिंग द एगारोस जेल. ओके, एंड इस दोनों ही एगारोस जेल पे एक इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट जो उठ के आया है वो सिंपली हमको बोलना चाहते हैं कि आफ्टर रनिंग द एगारोस जेल वी हैव गेट मल्टीपल फ्रैगमेंट्स और मल्टीपल डीएनए बैंड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. ओके, बट व्हाट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थियोरिटिकली कि हमने 400 बेस पेयर डीएनए दिया, 900 बेस पेयर डीएनए दिया और लाइगेस दिया. दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट ए डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ 1.3 KB जो होना चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ दैट we are getting various type of fragments or various type of DNA bands. So what is the reason behind it? They wants to know from us. Okay, so that is what the question want to told us. Okay, now हम लोग under such circumstances एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि 0.4 KB जो फ्रैगमेंट है ना एंड 0.9 KB जो फ्रैगमेंट है उस दोनों को हमने ऐड किया, उसके साथ हमने ऐड किया डीएनए लाइगेस को. ओके, सो आप लोगों को क्या लगता है कि 0.4 KB के पास भी BAMH 1 स्टैगर्ड इन है एंड 0.9 KB के पास भी BAMH 1 स्टैगर्ड इन है, राइट? सो आपको क्या लगता है कि डीएनए लाइगेस को मालूम होगा कि 0.4 के साथ ही 0.9 को जोड़ना है और किसी के साथ भी नहीं? डीएनए लाइगेस को तो मालूम नहीं है, वो क्या इंसान है? वो तो सिंपली एक एंजाइम है, राइट? सो 0.4 एंड 0.9 तो जुड़ेगा ही, बट वो भी जुड़ेगा बहुत ही मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन में एज कम्पेयर टू आवर एक्सपेक्टेशन. ओके, अलॉन्ग विद दैट देयर कैन बी द चांस ऑफ सेल्फ लाइगेशन, यू नो. दैट मीन्स
0.4 जो फ्रैगमेंट है उसके साथ और एक 0.4 का फ्रैगमेंट जुड़ जा सकता है, एक नहीं बहुत सारे जुड़ सकते हैं। ओके, सिमिलरली 0.9 का बहुत सारे फ्रैगमेंट जुड़ सकता है। ओके, सिमिलरली 0.4 और 0.9 तो जुड़ेगा ही, उसके साथ लेट्स से और एक 0.4 जुड़ जा सकता है। ऐसे करके मल्टीपल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हियर। यू नो व्हाट, बिकॉज हियर इन बोथ द 400 KB fragment, 400 base pair fragment and 900 base pair fragment, in both the cases the end is staggered in and which is created by BAMH1, right? So whenever the 5 prime end of the 0.4 KB come closer to the 3 prime end of another 0.4 KB, they will try to ligate with each other. Okay, similar in case of also 0.9 KB, right? So that is the reason why there are multiple possibilities present that I have mentioned here, and that is the reason why we are getting multiple fragment instead of just getting a 1.3 KB fragment. Okay, so that is the ligation type of problem that I have discussed now. अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप इससे लिख के रख सकते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। ओके, सो बहुत अच्छे से समझिएगा। सो अनदर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर, जो आप लोगों को इस एग्ज़ाम पे, दैट इज़ आवर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, आपको ज़्यादातर डबल डाइजेशन का ही प्रॉब्लम मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है ट्रिपल डाइजेशन विच इज़ क्वाइट ए हायर लेवल। ओके, सो मैंने पहले ही डबल डाइजेशन के ऊपर 5 वीडियो बना के रखे हैं। सो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। सो अगर आप लोग डबल डाइजेशन भी सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, ये नाम सुन के क्या पता लगता है कि हम लोग एक मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस मैप पे क्या रहेगा? उस मैप पे कुछ भी नहीं रहेगा। उस मैप पे रहेगा सिर्फ कि एक एंटायर जीनोम, इस एंटायर जीनोम में कितना रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है एंड उन सब का पोजीशन क्या है। सो इससे क्या हासिल होगा? इससे ये हासिल होगा कि सपोज during the cloning procedure, we all know that from the entire genome we have to first isolate our gene of interest. Okay, so suppose हम लोग LAGZ gene का, which is an important gene of lycopene, हम लोग LAGZ gene का cloning करना चाहते हैं। Okay, so and let's consider that इकोलाई का पूरा जीनोम का हमने रेस्ट्रिक्शन मैप करके रखा है। सो इसका मतलब अगर यहाँ पे सपोज BAMH1 साइट प्रेजेंट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि BAMH1 होगा ही, मैं सपोज करने के लिए कह रहा हूँ। सो हमको मालूम होगा, राइट? सो अगर हमको मालूम है तो हम लोग खामों का EcoR1 को चूज़ नहीं करेंगे फॉर डाइजेशन, बिकॉज BAMH1 पास में है, हमको LAGZ जल्दी मिल जाएगा, राइट? सो दैट काइंड ऑफ पर्पस वी हैव टू लर्न अबाउट द रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, जो हम लोगों को बताता है कि एक एंटायर जीनोम में कितना रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है एंड उस लोगों का पोजीशन क्या है। ओके, सो हम लोगों को तो ये मालूम पड़ गया कि क्यों हमें रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करना है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? सो इसको करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, हम लोग रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का यूज़ करेंगे। ओके, एंड दिस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन विल ऑब्वियसली with more than one restriction endonuclease. Mind it very 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 carefully. Okay, because अगर हम लोगों ने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन किया तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग का क्या मतलब रह जाएगा कि हम लोगों ने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया। इसका मतलब क्या? पूरा जो एंटायर जीनोम है उसमें
सिर्फ रेस्ट्रिक्शन, उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो ही दिखाएगा, राइट? एंड एज ए रिजल्ट इट नॉट मेक सेंस. सो मेक इट वेरी केयरफुली दैट अगर आप लोगों को कोई भी रेस्ट्रिक्शन मैपिंग प्रॉब्लम में अगर ये दिख जाए कि आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ बोला गया है कि सपोज़ हम लोग इको R1 से ही कट कर रहे हैं और किसी से भी नहीं, सो समझ लीजिएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है. ओके. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने ये बोल दिया कि ओके एक नहीं करीब कम से कम 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डाइजेशन का डाटा प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो सपोज इको R1 को से पूरा इंटायर जीनोम को डाइजेशन करने के बाद कितना रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिला है और उसका क्या क्या साइज़ है वो आपको मेंशन्ड है. एंड BAMH1 से भी क्या क्या रेस्ट्रिक्शन साइट आपको मिला है वो भी प्रेजेंट है. सो क्या आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? आप लोग मैप कर सकते हैं कि क्या क्या इको R1 रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है एंड क्या उन लोगों का पोजीशन है, एंड सेम इन द केस ऑफ BAMH1. सो द आंसर इज नो. Another important information is necessary here, that is the double digestion by eco R1 and BAMH1 both. So what it wants to say, that means हम लोगों ने eco R1 से पूरा जीनोम को एक बार डाइजेस्ट किया, उसके बदौलत हमको जो रेस्ट्रिक्शन साइट मिला हमने उसको नोट डाउन किया. अगेन BAMH1 से किया, नोट डाउन किया. एंड in the third case we have used eco R1 and BAMH1 both, and the restriction site that we have get, we note down it. Okay, sorry, the restriction fragment that we have get. Okay, so आपको आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का साइज़ को निकालेंगे कैसे. सो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट को निकालने का साइज बहुत इजी है. आपने एंटायर जीनोम को लिया, इको R1 से डाइजेस्ट किया, जो आपका सैंपल मिला उसको अपने अगारस जेल में चला दिया. ओके. एंड एज ए रिजल्ट आप लोगों को बैंड मिला एंड लैडर DNA के बदौलत आपने उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल दिया. ओके. एंड दैट इज़ व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट और साइज ऑफ द restriction fragment we have get with the help of eco R1. Similarly will be in the case of BAMH1, and similarly will be in the case of eco R1 and BAMH1. So it is clear that for restriction mapping problems we need more than one restriction endonuclease digestion. And another important thing, that the size of the restriction fragment that we have obtained should be mentioned. अगर ये तीनों चीज़ एंड डबल डाइजेशन का डाटा ज़रूर प्रेजेंट रहना चाहिए. और अगर सपोज कीजिए कि 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो 1 and 2 का डबल डाइजेशन, 1 and 3 का डबल डाइजेशन, 2 and 3 का डबल डाइजेशन का डाटा प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो ये 3 इंफॉर्मेशन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप लोग मैपिंग कर सकते हैं. ओके. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने बहुत को देखा है इसको कंफ्यूज होने के, सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि वी ऑल नो, हम सबको पता है कि प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, राइट? सो अपॉन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन who have only one cut side in the plasmid, we will get the DNA fragment of the same length that we have in case of plasmid. So what is the difference? The difference is only that before restriction digestion the DNA was circular, after restriction digestion the DNA is linear. Clear? That means whenever आपका DNA सर्कुलर है, आप लोग अपॉन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एक लिनियराइज DNA पाएंगे. बट लिनियर DNA है एंड आपने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया है उसका एक ही रेस्ट्रिक्शन कट साइट प्रेजेंट है. So under such circumstances we will get 2 fragments. So that is what I want to told you. Now let's come to the problems. So again I am telling you that if you have come for double digestion problem, so don't worry about this.
I will put the link of double digestion in the description box, and if you again want to learn about the triple digestion, then let's get started, otherwise you can stop the video here. So the first question is, क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं कि 6 kb का एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक प्लाज्मिड मॉलिक्यूल है, एंड हमने उसको 3 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट किया है. ओके, एंड उसके बाद डबल डाइजेस्ट भी किया है, एंड इसके बदौलत हमको ये फॉलोइंग डाटाज मिला है. एंड इस डाटा के बदौलत हमको पूरा डीएनए का मैपिंग करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वेदर द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग. तो मैंने क्या बोला कि 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसका मतलब 1 2 3, राइट. सो 1 and 2 का डबल डाइजेशन का डाटा मौजूद होना ज़रूरी है. सो EcoR1 BAMH1, येस EcoR1 BAMH1 प्रेजेंट है. 2 and 3 का भी डबल डाइजेशन का डाटा प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो BAMH1 HindIII प्रेजेंट है. एंड 1 and 3 का भी डबल डाइजेशन का डाटा प्रेजेंट होना ज़रूरी है. EcoR1 HindIII आपको दिखाई दे रहा है? ओके, सो थैंक यू. सो यस, हमारा डाटा मौजूद है. सो EcoR1 के समय क्या बोला जा रहा है कि EcoR1 के डाइजेशन से एक ही फ्रैगमेंट हमें मिला है. उसका मतलब क्या, EcoR1 के डाइजेशन के बदौलत प्लाज्मिड लीनियर हो रहा है. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ BAMH1, again one fragment that simply wants to tell us that there is only one cut site present in for BAMH1 in the plasmid DNA, which gives us a linear DNA, right? So now I think आप लोग EcoR1 को मैप में प्लॉट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज एक ही कट साइट है. सिमिलरली BAMH1 का भी एक ही कट साइट है, बट वो कई और जगहों का, राइट. सो नाउ व्हाट विल बी व्हेन वी विल ऐड EcoR1 and BAMH1 together. That means अब हम पूरा एंटायर जीनोम को EcoR1 and BAMH1 से कट कर रहे हैं. So try to think about this without seeing the data that is given here, that आप लोग क्या करना चाहते हैं, EcoR1 and BAMH1 को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं टू द प्लाज्मिड डीएनए. सो क्या होगा, सो एज हेयर EcoR1 का भी एक साइड प्रेजेंट है एंड BAMH1 का भी एक साइड, सो 2 कट साइड मिलेगा, राइट, एंड विच विल ब्रेक द एंटायर प्लाज्मिड डीएनए इनटू 2 डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट. ओके, क्लियर. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, राइट. सो हमने लिख दिया. सो EcoR1 BAMH1 में 2.5 3.5 है. सो एक कट साइड आप BAM का समझ लीजिए, एक कट साइड EcoR1 का समझ लीजिए. ओके, सो जो मैंने यह बोला है मैंने यह लिख भी दिया है. EcoR1 का एक, BAMH1 का एक. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट HindIII. HindIII का क्या बोल रहा है, HindIII का 2 कट साइड प्रेजेंट है, 2 फ्रैगमेंट हमें मिला है. इसका मतलब क्या है, HindIII का 2 कट साइड प्रेजेंट होगा, राइट. सो HindIII ने इस पूरा प्लाज्मिड को दोनों तरह से काटा है, जिसके बदले इसका एक 4.5 है एंड 1.5 है. सो एज हमने HindIII को बना लिया है, सो EcoR1 एंड HindIII के डबल डाइजेशन में क्या पिक्चर होगा अब ये देखना ज़रूरी है. यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, उसको आप डबल डाइजेशन के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट EcoR1 HindIII, आपको सिर्फ इस तीनों चीज़ में फोकस रखना है कि EcoR1 के टाइम पे क्या डीएनए फ्रैगमेंट मुझे मिला, HindIII के टाइम में क्या मिला, एंड डबल डाइजेशन के टाइप में क्या मिला. ओके, नाउ अमॉन्ग द 3 इस दोनों में एंड इसमें क्या क्या कॉमन है आपको ढूंढ के निकलना है. ओके, सो HindIII में दोनों फ्रैगमेंट है 1.5 4.5. सो कैन यू सी दैट 4.5 इज कॉमन विथ 4.5. ओके, सो इन दोनों में आप लोगों को कोई
सिमिलरिटी निकालनी नहीं है, आप लोगों को सिमिलरिटी निकालनी है इक्वार 1 एंड डबल डाइजेशन में और हिंदी 3 और डबल डाइजेशन में। ओके, so 4.5 and 4.5 is common. So what can we say? So as we can say that Hind 3 generates a 4.1 kb site and the double digestion also gives us a 4.1 kb site, 4.5 kb site, not 1. Okay, that simply means this 4.5 kb is especially due to Hindi 3. Okay, so चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। So Hind 3 ने 4.5 kb हमें दिया एंड हम लोग जानते भी है कि इक्वार 1 का तो एक ही कट साइड होगा, क्योंकि ये बेचारा तो एक ही फ्रैगमेंट दे जा रहा है कब से। सो दैट्स इट। सो 4.5 kb वी हैव ऑलरेडी अलॉटेड। सो हम लोगों को फिर बस 1 kb एंड 0.5 kb अलॉट करना है। सो अगर हम आपने ये एक हिंड 3 कट साइट है, एक हिंड 3 कट साइट है। सो हमको बस दोनों जो डीएनए फ्रैगमेंट एक्स्ट्रा हमारा प्रेजेंट है उस दोनों का अलॉट कर देना है। सो 1 0.5, दैट इज द आइडिया। हाउ सिंपल इट इज, isn't it? So that can be a one approach, or you can also use this one that I have made here, that मैंने इको R1 के दोनों बगल में हिंड 3 को रखा। आप लोग ये भी कर सकते हैं, राइट? एंड ये भी आपका क्वेश्चन को फुलफिल करता है, बिकॉज ए हिंड 3 तक का हिंड 3 एक हिंड 3 फ्रैगमेंट है। सो इट इज़ 4.5 kb एंड हिंड 3 ने एक 4.5 kb जनरेट भी किया है, राइट? सिमिलरली हिंड 3 तक का हिंड 3, सो 1 + 0.5 1.5। सो हिंड 3 ने क्या कि 1.5 kb का कि कोई फ्रैगमेंट जनरेट किया है? हाँ, किया है। सिमिलरली अगर हमने इक्वार 1 को देखा, कहा गया, सो इक्वार 1 के लिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्रैगमेंट का एडिशन करना पड़ेगा। सो 1 को 4.5, दैट मीन्स 5.5, 5.5 प्लस 0.5 वी आर गेटिंग 6, राइट? सो इक्वार 1 का तो एक ही का फ्रैगमेंट था, वो भी 6 ही था। दैट मीन्स हमारा जो मैपिंग हमने किया है वो एकदम सही है। ओके, सो हिंड 3 के साथ इक्वार 1 का कर दिया, अब ये टाइम है बैम H1 के साथ हिंड 3 का करना। ओके, सो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो बैम H1 में हमको एक फ्रैगमेंट मिला विच इज़ ऑफ 6 kb एंड बैम H1 एंड हिंड 3 में 3 फ्रैगमेंट मिला। ओके, सो बैम H1 को पहले अलॉट कर देते हैं एक फ्रैगमेंट एंड हिंड 3 में यहाँ पे 2.5, 2 kb, 1.5 kb जनरेट किया है। तो मैंने क्या बोला था आपको? कॉमन ढूंढिए, राइट? सो बैम H1 प्लस हिंड 3 को आपने हिंड 3 के साथ कंपेयर किया। सो आपको मिला कि भाई 1.5 kb इज़ 1.5 kb कॉमन, right? That means this 1.5 kb is especially due to the digestion of हिंदी 3. So आप लोग 2 हिंदी 3 का डंडिया लगा दीजिए और 2 डंडियों में लिख दीजिए हिंदी 3 का कट साइड कंप्लीट। हिंदी 3, सो ए आपका 1.5 है, ए आपका पैरा बैम H1 है, सो 1.5, 2.5, 2 kb, क्लियर? सो दैट्स हाउ इट इज़ वी हैव टू डन। सो हमने तो सबका मैपिंग कर दिया, राइट? सो नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तीनों का भूल जाइए। अब इस तीनों को किसी भी तरह से जोड़ के इक्वार 1, बैम H1 एंड हिंदी 3 एक साथ जब होगा तब क्या सिचुएशन हो सकता है, उस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ किसी लोग के लिए ये चीज़ बहुत टफ हो रहा है। सो मेरी बात का यकीन कीजिए, आप अगर इसको कर सकते हैं तो आप तो फोड़ के आएंगे जब एग्ज़ाम में आपको डबल डाइजेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ वन रिजल्ट ऑफ डबल डाइजेशन। सो मैंने क्या बोला आपको?
आपको एक्सट्रीमली सॉरी नाउ आपको इस 3 डबल डाइजेशन पे फोकस करना है एंड आपको ट्रिपल डाइजेशन में क्या होगा वो पता लगाना है. ओके, सो it is clear that EcoR1 and BAMH1 have 2 cut sides, right? In total EcoR1 का एक and BAMH1 का एक, right? So यहाँ पे वापस आइए, नहीं यहाँ पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है. So EcoR1 का एक कट साइड, BAMH1 का भी एक होगा. ओके, सो अगर हमने इस चीज़ को फोकस किया तो आपको क्या मिलेगा. कि EcoR1 का यहाँ पे एक कट साइड मौजूद है, इन दोनों पे हिंट्री. सो क्या हम यहाँ पे एक BAMH1 दे सकते हैं, क्योंकि BAMH1 का भी तो एक ही प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि मैंने बताया था कि BAMH1 का भी एक ही है. यस और नो, राइट. सो इस डायग्राम को इंटैक्ट रखकर अगर हमने यहाँ पे एक और BAMH1 प्रोवाइड कर दिया तो अभी सॉर्टेड, राइट, एकदम सॉर्टेड है. एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन हेयर. इट इज एग्जैक्टली इक्वल एंड BAMH1 का और एक कट साइड यहाँ पे लगा दिया एंड द प्रॉब्लम सॉल्व. सो अगर आपने इस डायग्राम को एनालाइज किया तो आपको ये चीज़ बराबर भी लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते थे कि हिंट्री एक 4.5 के भी कट जनरेट करने वाला है और एक 1.5 के भी जनरेट करने वाला है, राइट. सो देख लीजिए, हिंट्री ने एक 4.5 के भी दिया, एक 1.5 के भी दिया ना. सिमिलरली अगर हमने EcoR1 को देखा, सो EcoR1 पे यहाँ पर ओके, सो EcoR1 पर यहाँ पर 1, 3, 5.5, 6. सो EcoR1 का भी टोटल लेंथ हो रहा है 6. सो ये भी क्वेश्चन के डिमांड से मिल रहा है. एंड BAMH1 से अगर हमने हमारे रेलगाड़ी को घुमाया तो 2.5, 0.53, 4, 6. Okay, so that means the criteria that they have provided is exactly true. And now you may ask, तुमको ये किसने बताया कि EcoR1 यहाँ पे ही प्रेजेंट होगा और BAMH1 यहाँ पे होगा. उल्टा भी तो हो सकता है, BAMH1 यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, EcoR1 यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के पास जब प्लाज्मिड DNA का बात होगा तो आपके पास एक अलादीन का चिराग मौजूद है कि आप लोग जहाँ पर भी चाहिए बिठा सकते हैं जब कॉम्बिनेशन का फैक्ट आएगा. कॉम्बिनेशन मीन्स दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल में प्रेजेंट है. सो एज प्लाज्मिड इज ए लीनियर DNA, extremely sorry, that plasmid is a circular DNA, so you don't need to bother about combination. Because अगर आपने बोला कि नहीं मुझे तो EcoR1 को नहीं, BAMH1 को ही हिंट्री के 2 कट साइड के बीच में बैठाना है, सो मैं आपको बोलूँगा, किसने बोला कि BAMH1 दो हिंट्री के बीच में मौजूद नहीं है. आप यहाँ से देखिए, एक हिंट्री है, उसके बाद में एक BAMH1 है एंड उसके बाद में एक हिंट्री है. सो अगर हम लोग इस डायरेक्शन से देखें, सो 2 हिंट्री के बीच में तो BAMH1 ही है, राइट. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द एडवांटेज दैट यू विल गेट ऑन सर्कुलर DNA, राइट. बिकॉज सर्कुलर DNA में आप जिस तरह से देखेंगे उस तरह से आपको चीज़ें सही लगेगी. एंड बट इट इज़ ओनली फॉर व्हेन देयर इज़ ए 2 पॉसिबिलिटी एक दूसरे के साथ क्लैश हो रहा है. ओके, बट आप लोग ये मत समझ लेना कि आपने जो मर्जी बैठा दिया जो इस डाटा को भी फुलफिल नहीं करता है. अगर ये हुआ तो आपको 0 ही मिलेगा, कोई भी नहीं रुक सकता, राइट. बट whenever 2 equal possibility clashes each other, you don't need to bother about that because it is a circular DNA and this criteria will save you. But in case of this problem, you have to consider any kind of combination if present.
So what it wants to tell us, EcoR1 produces 3 fragments, BAMH1 produces 2 fragments, HIN3 produces 2 fragments, and the double digestion data are also present. So as you can see this double digestion data, it is clear that yes, this question is exactly correct. And another important thing that I want to mention, that it is a linear DNA example, so that is quite hard to tackle. So कोई हार्ड बात नहीं है, चलिए हम ये भी कर देंगे. सो पहले EcoR1 के लिए आप मैप बना लीजिए. सो EcoR1 के लिए आप देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, 3 रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हमको मिला है. 3 रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लीनियर डीएनए में है, इसका मतलब EcoR1 का 2 कट साइट प्रेजेंट है, 1 2 3, एंड दैट इन टर्न गिव्स अस 3 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स. क्लियर? एंड जो मैंने यहाँ पर बताया है, सिमिलरली BAMH1 में अगर 2 कट साइट प्रेजेंट है, इसका मतलब एक लीनियर डीएनए को एक बार अगर आपने काटा तो आपको 2 रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिलेगा. ओके, सो मैंने क्या बताया था कि EcoR1 BAMH1 अगर आपको मिल गया, सो देन इसको सॉल्व कीजिए, EcoR1 प्लस BAMH1. सो 4 मिला है, तो अब मैंने क्या कहा था, कॉमन ढूंढना सीखिए. सो इफ़ यू ऑब्जर्व, सो अगर EcoR1 से आपने डबल डाइजेशन का तुलना किया, सो 5 आपको कॉमन मिलेगा, राइट. दैट सिंपली मीन्स ये 5 जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है ये EcoR1 के बदौलत ही जनरेट हुआ है. ओके, सो आप लोग ड्रॉ कर दीजिए. सो एक 5 के भी मिला है हमें EcoR1 के बदौलत. ओके, एक 6 भी मिला है, चाहे तो आप देख लीजिए, 6, राइट. मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी. ओह, मैंने तो यहाँ पे ही लिख रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो EcoR1 BAMH1 से EcoR1 का तुलना करने में ये मिला कि हमने 5 और 6 मिला जो स्पेशली EcoR1 ने जनरेट किया है, राइट. सो नाउ हम लोग देख रहे हैं कि और एक जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है वो 11 है, बट EcoR1 एंड BAMH1 के डबल डाइजेशन में कोई भी 11 प्रेजेंट नहीं है, राइट. बट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड 5 and 6, राइट, विच इज बीइंग कॉमन विथ 5 and 6. सो 8 and 3 का अगर आपने एडिशन किया तो आपको मिलेगा 11, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 11. व्हाट डज इट मीन? दिस सिंपली मीन्स अगर आपने EcoR1 के पर्सपेक्टिव से देखा, सो इस 11 के ऊपर एक BAMH1 का कट साइड मौजूद था जो इस 11 EcoR1 रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट को 8 and 3 मोर फ्रैगमेंट में जनरेट कर रहा था. ओके, नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट. आप इसको 8 इसको 3 भी लिख सकते हैं, आप इसको 3 इसको 8 भी लिख सकते हैं. आप इस चीज़ को आप कैसे सेंस करेंगे ये जानने की कोशिश कीजिए. सो इसके लिए आपको जानना होगा कि BAMH1 ने कौन 2 रेस्ट्रिक्शन साइट प्रोड्यूस किया है. सो 14 और 8, राइट. सो अगर आपने ऊपर वाला कन्फर्मेशन रखा, सो आफ्टर BAMH1 डाइजेशन साइट you will get 8, 6 plus 5, that means 19 and 3. So is this the confirmation for BAMH1? No, because in BAMH1 we have 14, 8, right? So if we consider the data which is in the below, then it will fulfill, right? 3 plus 6, 9, 9 plus 5, what? 14 and 8. Okay, so that means the data which is in below will be the correct combination. So ऐसे कॉम्बिनेशन को नापा जाता है कि आपको
सिंगल डाइजेशन के साथ तुलना करके देखना होगा कौन वाला कॉम्बिनेशन फुलफिल हो रहा है, कि BAM-H1 के बाद तो और भी कोई BAM-H1 कार्साइड नहीं है। इसका मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो एक रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का लेंथ होगा। सो 8, 14, 19, हमको 19 मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई 19 मौजूद है? नहीं मौजूद है। बट अगर हमने नीचे वाला कन्फर्मेशन का चुना तो यहाँ पे जो एडिशन आएगा वो आएगा 14. So 14, 8, yes, this is the fragment that we have get in case of BAM-H1. So that is the idea. Clear? Now if we talk about HIN3, so there is one cut site present which breaks the linear DNA into two parts. One is 6 kb, another one is 16 kb. Clear? तो मैंने बोला HIN3 को अगर आपको मिल गया है सो EcoR1 एंड HIN3 के डबल डाइजेशन को भी तुरंत कर लीजिए। सो EcoR1 एंड HIN3 का डबल डाइजेशन, सो आपको अब क्या करना होगा, EcoR1 एंड HIN3 का जो सिंगल डाइजेशन है उस दोनों के साथ HIN3 एंड EcoR1 का डबल डाइजेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। सो पहले कंपेयर करते EcoR1 सिंगल डाइजेशन वर्सेस द डबल डाइजेशन दैट वी हैव गेट, राइट। सो इस 11 को देखिए, इस 11 को देखिए, इस 5 को देखिए, इस 5 को देखिए। ओके, तो सॉर्टेड, राइट। वाई सॉर्टेड? बिकॉज दिस इज द एंटायर DNA, राइट। सो 11 इज कॉमन, दैट मीन्स इट इज क्लियर। सो तो बात सॉर्टेड है कि यहाँ पे 11 कॉमन है। इसका मतलब दिस 11 इज़ ओनली बिकॉज ऑफ EcoR1। 5 कॉमन है, सो दिस 5 इज़ अगेन ओनली बिकॉज ऑफ EcoR1। सो जो प्रॉब्लम है वो 6 के बदौलत है। सो इस 6 जो EcoR1 के बदौलत जनरेट हुआ है उस 6 के बीच में एक HIN3 का कट साइड मौजूद है। जो HIN3 का कट साइड 6 को 5 और 1 में डिवाइड कर रहा है। दैट इज वाई अपॉन डबल डाइजेशन वी आर गेटिंग 4 restriction fragment, 11, 5, 5, 1. So there can be also chance of conformation we need to talk about, right? That means that I want to say that हम लोग 6 को यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे भी लिख सकते थे, पर हमने क्यों ऐसा लिखा? सो अगर आपने HIN3 का जो 2 फ्रैगमेंट है उसको अगर आपने एनालाइज किया तो 11 + 5 16, 5 + 1 6। सो HIN3 का 2 फ्रैगमेंट क्या है? 16 + 6, राइट। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 5 को लिखा होता, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे EcoR1 लिखा होता, यहाँ पे फिर से एक EcoR1 लिखा होता, यहाँ पे मैंने HIN3 को रहने दिया होता, सो मेरा कन्फर्मेशन कुछ इस तरह से होता। सो एक या HIN3 का जो रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको फुलफिल कर रहा है? एकदम नहीं, राइट। दैट इज़ वाई हमने ए कॉम्बिनेशन चुना। सो ये आपको करते करते आ जाएगा, सो डोंट नीड टू बोदर्ड अबाउट दैट। सो हमने EcoR1 एंड HIN3 का भी कॉन्फर्मेशन निकाल दिया बड़े आराम से, राइट। नाउ इट इज़ टाइम फॉर BAM-H1 HIN3। सो मैंने जैसे सिखाया कॉमन ढूंढिए। सो BAM-H1 के साथ डबल डाइजेशन में यहाँ पे कॉमन है। सो मेक श्योर दिस के लिए एक ही एंजाइम जिम्मेदार है, वो BAM-H1 है। ओके, नाउ HIN3। सो एज यहाँ पे भी 6 कॉमन है, सो दिस 6 इज ओनली बिकॉज ऑफ HIN3। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग नाउ, दैट इज एंटायर DNA। सो BAM-H1 ने एक 8 को सिक्योर किया एंड HIN3 ने एक 6 को सिक्योर किया। सो इन दोनों के बीच में एक 8 रह जाएगा, राइट। बिकॉज BAM-H1 के डबल डाइजेशन के 6 के साथ HIN3 का 6 का एक कॉमन है एंड BAM-H1 के 8 के साथ उन लोगों का डबल डाइजेशन का एक कॉमन है, राइट। कॉमन जो नहीं है वो है एक 8। ओके, दिस 8 इज बिकॉज ऑफ द
middle part. Okay, so now once we have derived the map for all the three double digestion, now मैंने क्या बोला, जो सिंगल डाइजेशन का मैप था उसको जस्ट भूल जाइए. राइट नाउ इस चीज़ को कंपेयर करना शुरू कीजिए. ओके, सो आपको यह दिख रहा है कि इक्वार वन बैमेज वन में इस वाला पार्ट एंड इक्वार वन हिंदी 3 में इस वाला पार्ट. दैट मीन्स व्हाट, 8 and 3 5 प्राइम इंड में प्रेजेंट होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट श्योर है. राइट, एंड उन दोनों के बीच में एक बैमेज वन कट साइड मौजूद होगा. ओके, एंड नाउ इट इज़ सॉर्टेड. राइट, आप लोग इस वाले पार्ट के साथ इस वाले पार्ट को जोड़ दीजिए, खेल ख़त्म है. राइट, बिकॉज अगर आपने इसको बारीकी से समझा, सो हिंट्री का जो एक कट साइड है वो 6 जो फ्रैगमेंट है उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, एक 5 एक 1. राइट, एंड दैट इज़ वाई वी हैव गेट दिस. ऐसे आप लोगों को ट्रिपल डाइजेशन प्रॉब्लम को हैंडल करना होता है कि जहाँ पर आपको जो 3 डबल डाइजेशन का मैप मिलता है उस 3 डबल डाइजेशन को आपको कंपेयर करना होता है टू डिराइव द ट्रिपल डाइजेशन. ओके, सो एज यू आर डिराइविंग द मैप फॉर डबल डाइजेशन इन ईच ऑफ द केसेस, सो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जब बैमेज डबल डाइजेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम पे, आप लोग 4 के आएंगे. राइट, so that is all the type of question that you may expect from the second chapter. Okay, now अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में है आपके लिए जीन डिलीवरी सिस्टम्स, वेस्टर्न ब्लॉट, दैट मीन्स ऑल काइंड ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक, एंड एगारस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड एक छोटू सा टॉपिक है जिसका नाम है डीएनए माइक्रो एरे. ओके, तो आपको क्या लगता है कि इन सब में से कोई मैथ आने की पॉसिबिलिटी है? मुझे तो नहीं लगता. सो मैंने इसको जाने दिया. उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पीसीआर है. सो पीसीआर में 2 फार्मूला है, उस फार्मूला से मैथ आ सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट. सो आई थिंक यू नो दैट पीसीआर इज ए polymerase chain reaction, okay, which we are using to amplify DNA in vitro, right, and it is a chain reaction, and each of the cycle और polymerase chain reaction को आप लोग chain reaction कहते हैं और cycle reaction भी कह सकता है. and in each step और in each cycle there will be 3 part. ओके, वन है हमारा डिनेचुरेशन जो 93 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है. अनदर वन है एनिलिंग जो होता है 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एंड अनदर वन इज पॉलीमराइजेशन, ओके, जो टैग पॉलीमरेज के प्रेजेंट पे ज़्यादातर क्षेत्रों में 73 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी है. ओके, सो these three step consist of, or these 3 step together form a one cycle. Okay, and this cycle continuously एक chain reaction के टाइप रिपीट होके PCR को कंप्लीट करता है. राइट, सो नाउ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो मैंने बोला, एनिलिंग. एनिलिंग में क्या होता है कि वंस ये अगर आपका DNA है डबल स्ट्रैंडेड DNA, due to denaturation it gets separated into single strands. राइट, अब इसके बाद जो रिवर्स प्राइमर एंड बैक एंड फॉरवर्ड प्राइमर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसको आपको एनिल करना पड़ेगा, एंड इसके लिए टेम्परेचर को घटाना ज़रूरी है. ओके, बट ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर इतना घट मत जाए जो मिस मैच हाइब्रिड को प्रोमोट करे. ओके, दैट मीन्स आप लोग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं और बहुत कम भी नहीं रख सकते हैं. ओके, अदरवाइज एनिलिंग हैम्पर होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द एनिलिंग टेम्परेचर.
एंड ये देखा गया है कि एनीलिंग टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर के साथ रिलाई करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर के करीब करीब 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो में हम लोग हमारा एनीलिंग टेम्परेचर को रखते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट द जिपर इफेक्ट। जिपर इफेक्ट कब कब चलता है? जब हम लोग 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा फ्रैगमेंट को हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एनीलिंग हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना, वो नथिंग बट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि एक डीएनए का जीसी कंटेंट समथिंग है। ओके, नाउ आपको एक डीएनए का बेस पे अमाउंट भी बता दिया जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट। नाउ आपसे पूछा जाएगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर कितना हो सकता है। ओके, सो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो how do you determine the TM of a 14 nucleotide DNA fragment containing 50% of the GC content? So 50% of the GC content I think मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब A का अमाउंट, T का अमाउंट, G का अमाउंट एंड C का अमाउंट here exactly same है, right? So the formula is 4 into G plus C plus 2 into A plus T. Okay, so G and C का 50% and total amount of 14 nucleotide, that means it is clear that the 50% GC means 7 nucleotides. So 4 into 7 plus 2 into 7, 42. That is the TM value. That means आप लोग एनीलिंग टेम्परेचर को 37 के आसपास रख सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल्टिंग टेम्परेचर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है जो और भी इंटरेस्टिंग है, सपोज आप लोग शुरू कर रहे हैं एक पीसीआर रिएक्शन जहाँ पर आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए है 25। ओके, आपने 30 साइकिल्स तक पीसीआर रन किया और आप लोग सपोज करना चाहते हैं 30 साइकिल्स तक पीसीआर रन। उसके पहले आप लोग ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि मुझे कितना फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज़ NF is equal to Ni into 2 to the power n. NF is the amount of the final product, Ni is the amount of the initial product, and 2 to the power n, this small n stands for the number of the cycle. So आप लोगों को शायद एक क्वेरी होगी कि क्यों ज़रूरत है फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट जानना। So बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट जानने के साथ साथ हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना साइकिल तक हमको पीसीआर रन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को तो एक सर्टेन अमाउंट तक डीएनए ज़रूरत है, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव मेड अनदर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, जहाँ पे बोल रहा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए बिफोर पीसीआर इज़ 25, आफ्टर 30 साइकिल व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सो फॉर्मूला पे प्लॉट करके आपको ये आएगा, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर कंसिडरिंग दैट द एफिशिएंसी ऑफ द पीसीआर इज 100%। ओके, बट इट इज़ नॉट द केस, बिकॉज कोई भी चीज़ का भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, राइट? सिमिलर इन केस ऑफ पीसीआर, क्योंकि पीसीआर कोई एलियन का बनाया हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हम लोगों इंसान के बनाई हुई इंस्ट्रूमेंट है, राइट? सो इसका भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। सो इसका 3 कारण है। वन इज़ द डीएनए पॉलीमरेज दैट वी आर यूजिंग, बिकॉज इट इज़, यू नो व्हाट, इट इज़ नथिंग बट एंजाइम। ओके, एंड एंजाइम तो बाबू टाइप्स है कि इसका ऑप्टिमल कंडीशन रहना ज़रूरी है, अदरवाइज ये खुल के काम नहीं करता, right? So when suboptimal conditions are present, DNA polymerase activity will decrease. Okay? Poor primer annealing ये तो मौजूद है ही है, क्योंकि एनीलिंग के लिए तो इतना प्रॉब्लम हमने फेस किया। सो पुअर प्राइमर एनीलिंग भी हो सकता है, एंड इनकम्प्लीट डिनेचुरेशन ऑफ द टेम्पलेट। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, क्योंकि यू नो व्हाट, जीसी कंटेंट डीएनए में जितना ज़्यादा होगा
डीनेचर करने में उतना ही प्रॉब्लम होगा। ओके, सो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। सो दैट इज़ वाई पीसीआर का एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज द फार्मूला विल बी चेंज इनटू दिस वन, PCR product, that is nothing but our NF is equal to NI into 1 plus percentage of efficiency to the power n। अगर आपने इस फॉर्मूला को बारीकी से देखा, so I think you can already understand that it is nothing but this formula itself, because I have told you that the previous formula is when efficiency is 100%, and 100% efficiency means there will be 1 plus 1, right? 1 plus 1 means what? 2, right? That means it is nothing but NF is equal to NI into 2 to the power n. Okay, but when it will be mentioned that yes, PCR efficiency is something, then you have to consider this one instead of just using the previous formula. Okay, for example, let's say the PCR efficiency is 80%. Okay, so you have to put 0.80 or 0.8, anything you can do here. Okay, and then you have to derive the formula. Similarly, if they told you that PCR efficiency is 99%, so you have to put 0.99 plus 1, okay, to the power the cycle number that we are wanting. So I think now you can understand this problem. Okay, so what is this one? Okay, so now we have, okay, so we have completed our chapter number 4 also. Now let's talk about 5, that is our DNA cloning. Okay, so यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि इसका भी डिटेल वीडियो मौजूद है मेरे YouTube चैनल के जीनोमिक लाइब्रेरी सेक्शन में, आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे एंटायर जीनोम में सपोज मेरा जीनोम, सो मेरा जीनोम के को यूज़ करके हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स मेरे शरीर के अंदर जितना भी जीन मौजूद है वो जीन को हम लोग क्लोन्स के फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे। सो दिस फार्मूला दैट आई हैव मेंशन हेयर simply help us to determine how much amount of clones needed, and similarly once the library is constructed and now we are willing to find out a particular gene, under such circumstances how much clone we have to screen. Okay, so this is nothing but the Clark and Carbon principle, where P means probability that our DNA is present here, A means gene of interest size or average size of the DNA that can be accommodated, okay, and another one is B means the total genome. Okay, so आसान भाषा में अगर आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो ये यही बात है। सपोज इकोलाई के केस में इस चीज़ को कंसीडर करने की कोशिश कीजिए। सो इकोलाई के ऊपर बेस करके हमने एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। ओके, सो इकोलाई का इंटायर जीनोम को तो हम लोग एक वेक्टर में बैठा नहीं सकते। सो हमको उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन के बाद उसका एक एक फ्रैगमेंट को हमको रेस्ट्रिक्शन वेक्टर के बदौलत क्लोन करना पड़ेगा इन ए स्पेसिफिक होस्ट सेल, राइट। सो नाउ लेट्स से आप लोग कहीं पे घूमने गए हैं। ओके, जहाँ पे आप लोगों ने एक ग्रुप में घूमने गए हैं जहाँ पे करीब करीब 60 लोग हैं। ओके, 60 मीन्स 60। ओके, सो नाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू डिटरमाइन हाउ मेनी टैक्सी विल रिक्वायर्ड टू complete that 60%, right, inside for sightseeing, for any kind of sightseeing, right। so मैंने बोला 60 आदमी है। नाउ आप लोग ये डिटरमाइन कर लीजिए कि उस 60 आदमी में कोई मोटा भी हो सकता है, बहुत मोटा भी हो सकता है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं एक टैक्सी में 5 को बिठा के चला जाऊँगा, दैट मीन्स टोटल 12 टैक्सी लगेगी। नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते, राइट।
5 के ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि कोई कोई मोटा हो सकता है, इतना मोटा हो सकता है कि कोई कोई टैक्सी में 2 लोग गए हैं, कोई कोई टैक्सी में 3 लोग गए हैं. दैट मीन्स इट कैन वेरी, राइट. सो सिमिलर इन केस ऑफ आवर जीनोमिक लाइब्रेरी फॉर्मेशन, राइट. कौन कौन फ्रैगमेंट कि टोटल फ्रैगमेंट का क्लोनिंग इंश्योर करने के लिए कितना रिकॉम्बिनेंट क्लोन की ज़रूरत है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट क्लार्क एंड कार्बन ने ये फार्मूला दिया था. ओके, सो दिस फार्मूला आपको ये बता सकते हैं कि आपको कितने टैक्सी चाहिए टू अलाउ ऑल द 60 ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू गो फॉर द साइट सीइंग. नॉट ओनली दैट, वो आपको ये भी बता सकते हैं कि अगर आपका कोई भी बच्चा अनफॉर्चुनेटली खो गया है, सो आपको कितने टैक्सी को जांच करना पड़ेगा. दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वंस जीनोमिक लाइब्रेरी इज कंस्ट्रक्टेड, सपोज इन इकोलाई यू आर विलिंग टू फाइंड आउट लैगजेट जीन. ओके, सो लैगजेट जीन का आपको सीक्वेंस मालूम है, सो आपको कितना रिकॉम्बिनेंट क्लोन को स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है टू फाइंड आउट कहाँ पे आपका लैगजेट जीन छुप के बैठा है. ओके, इस दोनों चीज़ को ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्लार्क एंड कार्बन के प्रिंसिपल से. आई थिंक इसके बाद आपको ये चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्यों हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ए क्वेश्चन. सो लैम्डा EMBL3 इज़ यूज्ड एज ए वेक्टर टू क्लोन फ्रैगमेंट. सो ये हमारा ए का वैल्यू है, राइट, क्योंकि एक वेक्टर में इतना साइज का जीनोम आ सकता है. ओके, generated from a partial Saw3A1 digestion of the human genome of, this is the total length, okay, of the entire genome. We wish to isolate, that means इसके बाद ये सब करके हमने जीनोमिक लाइब्रेरी को फॉर्म कर लिया. अब ये लोग बता रहे हैं कि वो इस 20,000 बेस पेयर का फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना चाहते हैं. एंड वो लोग ये भी बता रहे हैं कि हमारा P का वैल्यू, दैट मीन्स इस DNA उस एंटायर लाइब्रेरी में प्रेजेंट होने का चांस है 99%. ओके, सो कितना रिकॉम्बिनेंट क्लोन को हमको एग्जामिन करना पड़ेगा. ओके, सो मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया उसकी बदौलत ये चीज़ आपको लिए समझना बहुत आसान है कि हमने एक गाड़ी पे 20,000 बेस पेयर लेंथ का जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठाया था फॉर फॉर्मिंग द लाइब्रेरी, राइट. नाउ मुझे उसको ढूंढना है, सो मैं कितना क्लोन का जांच करूँगा. ओके, सो बिठा दो क्लार्क एंड कार्बन प्रिंसिपल पे. सो the probability that DNA must be present was 99%. So if I convert it into fractions, so 0.99. Clear? And the entire size of the DNA that can accommodate inside a vector is 2 into 10 to the power 4, and the total length of the genome is this one. Okay, now you can get this easily with the help of your calculator. So that is the idea of Clark and Carbon principle. Okay, and this type of math we have already discussed. ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको 2 ऑलिगोपेप्टाइड के सीक्वेंस दिया गया है. अब आपको फाइंड करना है कि किस ऑलिगोपेप्टाइड का रिवर्स ट्रांसलेशन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मिलेगा उसको आप चूज़ करेंगे फॉर कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन. सो दैट मीन्स वो लोग आपसे यही चीज़ पूछना चाहता है कि अगर तुमने इसको DNA लेवल पे ले गए अगर तुमने इसको कहीं से भी DNA लेवल तक ले गए एंड सिमिलरली इसको भी ले गए, तो कौन सा DNA सीक्वेंस विल बी ए बेटर ऑप्शन टू यूज़ एज ए प्रोब. सो मैंने इसका भी डिटेल लेक्चर लिया था ऑन जीनोमिक लाइब्रेरी प्लेलिस्ट. सो आप लोग जाकर देख सकते हैं. सो जीनोमिक लाइब्रेरी प्लेलिस्ट में वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रोब शुड बी वेरी स्पेसिफिक, राइट. सो अगर आपने कोडोन टेबल को देखा तो आपको
पता लग जाएगा कि अगर मैंने इस चीज़ को यूज़ किया तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। ओके, सो इस प्रॉब्लम का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में दिया है। सो अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दैट यू मे गेट ऑन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में तो एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। सो वहाँ पे तो कोई फॉर्मूल मैथ आने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट इट फॉर टुडे। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड every important patterns of important patterns of math that I expect that you should may face in your exam. Okay, so उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास। आप लोग जिस भी समय में इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बेसिस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ओके, सो बाय बाय।